Hello students, in this video I will talk about musical scale. I will also talk about a very popular musical scale, a diatonic scale. I will talk about musical interval and its drawback. So what do you mean by a musical scale? A musical scale is a series of notes which are separated from one another by definite intervals so that when played upon in succession they give rise to a musical effect. That means a musical scale is a series of notes. We have so many notes in series which are separated from one another by definite intervals so that when they are played upon in succession, means when they are played together, they give rise to a musical effect. Now what do you mean by interval here? This I will talk in separately afterward. Okay, so what do you mean by concord? Concord is when two or more notes of different frequencies are sounded together and the resulting combined note produces a pleasing effect on the ear and mind. The combination of notes is called as concord or consonant, and the different notes are said to be in consonance. Means कि when two or more notes of different frequencies are sounded together and they combinedly produces a pleasing effect on the ear and mind, then this combination of notes is concord or also its consonant, and the different notes which are played are said to be in consonance. Now what's it? Discord. Discord is when the combination of two or more notes sounded together produces a jarring effect. Means the combination of two or more notes of different frequencies when played together produces unpleasing effect on or jarring effect on the ear and mind. It is called discord or dissonant, and the notes are said to be in dissonance. Okay. Now what is musical interval? Musical interval means it's just the ratio of frequencies of two notes which when sounded together produce a musical relationship, right? Means it's just the ratio of frequencies of notes. Just it's the बस इतना ही है कि रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ टू नोट्स, और जो ये रेशियो है इसको हम बोलते हैं म्यूजिकल इंटरवल बोलते हैं इसको. ठीक है. दिस इंटरवल इज इक्वल टू 1 और मोर देन 1, बट इट कैन नेवर बी लेस देन 1. ये जो रेशियो है इंटरवल जो है ये 1 हो सकती है, मोर देन 1 हो सकती है, बट ये लेस देन 1 नहीं हो सकती. ओके. For example, if the frequencies of two notes are F1 and F2, where F2 is greater than F1, F2 is greater than F1, so musical interval is equal to F2 by F1. Musical interval just is the ratio of the frequencies. So let's study about some common musical intervals. First is unison. Unison means two notes are in unison when their frequencies are the same, that is their interval is 1. Means रेशियो दो फ्रीक्वेंसीज की सेम होगी तभी उनका इंटरवल 1 आएगा. जब इंटरवल 1 आएगा तो उसको बोलते हैं म्यूजिकल इंटरवल को यूनिसन. यूनिसन होता है कि फ्रीक्वेंसीज दोनों की सेम हो. और ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव मीन्स व्हेन द इंटरवल ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ टू नोट्स इज 2. जब ट्वाइस होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्टेव. दे आर ऑक्टेव अपार्ट, राइट. फॉर एग्जाम्पल, एक की नोट की फ्रीक्वेंसी मान लो 2F है और दूसरे की है F. ठीक है. तो यहाँ पे जो रेशियो आ रही है, जो इंटरवल आ रहा है म्यूजिकल इंटरवल, दिस इज 2. सो दिस इज नोन एज ऑक्टेव. एज एन एग्जाम्पल यू कैन सी a note of frequency 512 is an octave higher than a note of frequency 256. तो 256 से 512 जो है एक ऑक्टेव हायर है. ऑक्टेव का मतलब समझ के कि इसकी जो रेशियो है आपस में ट्वाइस है ना. सो दिस इज ऑक्टेव हायर. बट अ नोट ऑफ फ्रीक्वेंसी 128 is an octave lower than a note of frequency 256. Some other common musical intervals
मेजर टोन, माइनर टोन, सेमीटोन, दीज आर ऑल्सो ये कॉमन म्यूजिकल इंटरवल्स हैं। ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपको एग्ज़ाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, कि आपको ये सब चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी, इनकी फ्रिक्वेंसीज, इनके वैल्यूज़, बट आपकी जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पता होना चाहिए कि म्यूज़िकल इंटरवल्स क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बहुत ही कॉमन है यूनिसन और ऑक्टेव। उसके अलावा कुछ और कॉमन म्यूज़िकल इंटरवल्स हैं ये सारे। मेजर टोन है जिसकी रेशियो है 9:8, माइनर टोन की 10:9, सेमीटोन 16:15, मेजर थर्ड है 5:4, मेजर फिफ्थ है 3:2, मेजर सिक्स है 5:3. These all are the common musical intervals. Now this is a table. This table is a diatonic scale. Right, and in this table this gives us the name of 8 different notes, because diatonic scale का जो interval होता है ये octave होता है। तो ऑक्टेव में जो इंटरवल की वैल्यू जो है वो ट्वाइस में आती है। ठीक है, और इसमें क्या है, ये जो डायटोनिक स्केल है इसकी खासियत ये है कि इसमें 8 डिफरेंट नोट्स हैं, तो यहीं से इसका नाम ऑक्टेव भी है। तो ऑक्टेव का यहाँ मतलब ऑक्टेव का वैसे मतलब है कि रेशो 2। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होना किसी ने कि ऑक्टेव का मतलब हम 8 ले रहे हैं, नहीं। यहाँ पे बाय चांस की बात है कि जो डायटोनिक स्केल है उसमें 8 डिफरेंट नोट्स होते हैं। ठीक है, आपको ऐसे ऑक्टेव भी मिलेंगे जिनमें 12 नोट्स होंगे या 13 नोट्स होंगे। ठीक है, तो ऑक्टेव का मतलब 8 नहीं होता, यहाँ से इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना। बस ये है कि जो डायटोनिक स्केल है उसके 8 डिफरेंट नोट्स होते हैं, ये आपको लर्न होना चाहिए, पता होना चाहिए। और ये 3 डिफरेंट नोटेशन से दिया गया है। फर्स्ट इज वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी, सेकेंड इंटरवल विद द की नोट, थर्ड इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट नोट। जैसे कि वैल्यू ऑफ फ्रिक्वेंसी आप देख सकते हो, जैसे यहाँ पे अलग अलग रोज हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे हेल्महोल्ट्ज़ नोटेशन है, ठीक है, वेस्टर्न नोटेशन में है, इंडियन नोटेशन है जो कि सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, और ये रिलेटिव फ्रिक्वेंसीज इन सब नोट्स की दी हुई है 24, 27, 30। और यहाँ पे आप देखोगे फ्रिक्वेंसी ऑफ नोट कंसिडरिंग की नोट फ्रिक्वेंसी 256 हर्ट्ज। ये जो फ्रिक्वेंसी ऑफ नोट है ये की नोट को कंसिडर कर रहा है 256। यहाँ पे की नोट का मतलब यह है कि की नोट होता है जो फ्रिक्वेंसी विद द लोएस्ट नोट, राइट। जो लोएस्ट जो फ्रिक्वेंसी है उसको हम बोलते हैं की नोट। यहाँ पे जो इसकी फ्रिक्वेंसी है वो है 256, तो यहाँ पे जो की नोट फ्रिक्वेंसी है ये 256 है। 256 हो गई, डी वाले की होगी 288, 320 एंड लाइक सो ऑन। इंटरवल विद की नोट एंड नेम ऑफ द इंटरवल। नाउ यहाँ पे क्या है कि इंटरवल विद की नोट मतलब आप इंटरवल निकाल रहे हो की नोट के विद रिस्पेक्ट टू, मतलब कि अगर आप इस सी के लिए अगर आप देखते हो या सा के लिए अगर देखते हो तो यहाँ पे आप देखो कि 256 है फ्रिक्वेंसी। अब इसकी की नोट के साथ अगर रेशियो निकालनी है, इंटरवल निकालना है, तो क्या होगा 256/256 विच इज़ 1। सो हेंस इट इज़ नोन एज यूनिसन। यूनिसन का मतलब ही यही होता है कि इंटरवल जिसका 1 हो उसको हम बोलते हैं यूनिसन। सो इस केस में तो 1 हो गया। अगर आप इसके लिए निकालोगे सो इट विल बी 288/256. So this ratio will be 9/8 and 9/8 I have told is major tone, right? So ये वाली आपकी मेजर टोन यहाँ पे ये इंटरवल हो गया। इसके लिए आपके पास 5/4 इंटरवल आ रहा है और ये 5/4 इंटरवल जो होता है इसको बोलते हैं मेजर थर्ड, राइट। देन वी हैव 4/3, 3/2। 3/2 को हम क्या बोलते हैं, मेजर फिफ्थ, राइट। देन 5/3 मेजर सिक्स्थ, ठीक है। और ये 15/8 सेवेंथ है। ये जो 2 है जिसकी रेशियो उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं, राइट। सो ये आपको सारी लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये पता होना चाहिए, यूनिसन ऑक्टेव का पता होना चाहिए। और बाकी का बस ये देख लो आप सारे, आप देख सकते हो कि इन सब में देखो कि इंटरवल जो है
सबकी आप देख रहे हो या तो इक्वल टू 1 है या ग्रेटर देन 1 है, सबकी रेशियो निकाल के आप देख लो चाहे, ठीक है। सो वही पॉइंट है कि इंटरवल जो है लेस देन 1 नहीं होता, ठीक है। और ये जो पूरा टेबल है ये डायटोनिक स्केल का है, हर स्केल का अपना अलग अलग होता है, ये फ्रिक्वेंसीज का टेबल, नोट्स अलग होंगे। यहाँ पे 8 हैं तो कोई और टेबल होगा तो उसमें ज़्यादा या कम हो सकते हैं, ठीक है। और ये लास्ट वाली रो क्या है, इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट नोट एंड इट्स नेम। एडजेसेंट नोट के साथ इंटरवल निकाला है, मतलब कि सी और डी का, डी और ई का, ई और एफ का, ऐसे ऐसे सबका जो फ्रिक्वेंसीज का जो रेशियो है उसका निकाला हुआ इंटरवल बिटवीन एंड इट्स नेम। तो ये इसका नेम उस हिसाब से हमने दे दिया। हमें पता है 9/8 किसका इंटरवल होता है, मेजर टोन का, ठीक है। 10/9 होता है माइनर टोन का, ठीक है। सो लाइक दिस 16/15 लिखा हुआ है, ठीक है, ये सेमीटोन का हो गया। सो दिस इज द स्केल, डायटोनिक स्केल टेबल। नाउ डायटोनिक स्केल है क्या, ये किसने इंट्रोड्यूस किया था, ये 1580 में ज़ार्लिनो ने कंस्ट्रक्ट किया था एक म्यूजिकल स्केल बाय इंट्रोड्यूसिंग 6 नोट्स बिटवीन एन ऑक्टेव। मतलब कि एक ऑक्टेव है, ठीक है, मतलब ऑक्टेव क्या होगा कि आपके पास स्टार्टिंग और एक एंड है, उसमें जो रेशियो है दोनों की वो ट्वाइस होगी। मतलब आप वैसे भी आप टेबल में भी आपने देखा हो अगर, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 256 है और लास्ट में क्या है 512 है, तो ये ट्वाइस हैं, ठीक है। सो ये ऑक्टेव होता है टेबल। ऑक्टेव का मतलब ये होता है कि रेशियो आपकी ट्वाइस होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऑक्टेव के बीच में 6 नोट इंट्रोड्यूस किए थे, इंट्रोड्यूसिंग 6 नोट्स, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्ट कर दिया था म्यूजिकल स्केल जिसका नाम था डायटोनिक स्केल। ये ज़ार्लिनो ने 1580 में कंस्ट्रक्ट किया था। एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन म्यूजिकल स्केल विच इज कॉमन टू इंडियन म्यूजिक as well as western music, right? The interval between a note and its octave is divided into 7 smaller intervals. आप देख सकते हो कि 8 नोट्स हैं तो आपके पास इंटरवल कितने बनेंगे, 7 बनेंगे, ठीक है। और ये 8 के बीच, ये जो 8 है स्टार्टिंग और एंडिंग के बीच में कितने लेकर आए, वो कितने नोट्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, 6 नोट्स को। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग 6 नोट्स, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग 6 नोट्स इन बिटवीन दिस, ठीक है, लास्ट 2, thus we get an diatonic scale, and this diatonic scale has 8 notes in all. All these 8 notes constitute major diatonic scale, okay. And this I have already told, the note of the lowest frequency, लोवेस्ट जो फ्रिक्वेंसी है उसका जो नोट होता है उसको हम बोलते हैं की नोट। यहाँ पे आप देख सकते हो इस टेबल में जो लोवेस्ट नोट है ये वाला सा है ना, इस नोट की जो फ्रीक्वेंसी है ये 256, तो इसको हम बोलते हैं की नोट, ओके। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ म्यूजिकल स्केल, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज the interval between any note of the major diatonic scale and key note is a simple ratio. means कि अगर ये जो डायटोनिक स्केल के हम किसी भी नोट की रेशियो लेंगे विद द की नोट, ठीक है, की नोट की मैंने बताई थी फ्रिक्वेंसी है 256, इसकी मैंने रेशियो अगर किसी भी नोट के साथ ली, ठीक है, तो वो एक हमारे को सिंपल रेशियो देता है, ठीक है। Second point is interval between any two adjacent note, right, of the major diatonic scale is also a simple ratio. जो दो कोई साथ साथ वाले हैं उनमें भी अगर हम इन दोनों की निकालें तो वो भी हमें क्या देगा, एक सिंपल रेशियो देगा। Third point is the interval between any two notes is equal to the sum of the intervals between the intervening notes. It means कि जो दो नोट्स हैं, लेट सपोज मैं आपको दो नोट्स, एक हमारा स्टार्टिंग वाला ले लेते हैं हम 256 जिसकी फ्रिक्वेंसी है, और लास्ट वाला ले लेते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी है 512, है ना। सो इन दोनों का जो इंटरवल है वो हमें पता है क्या है, 2 है ना, 512 डिवाइडेड बाय 256, तो हमारे पास इंटरवल इसका 2 होता है। सो कह रहा है इंटरवल बिटवीन एनी टू नोट्स इज इक्वल टू
सम ऑफ द इंटरवल्स बिटवीन द इंटरवेनिंग नोट्स, मतलब ये दो नोट्स हैं जो फर्स्ट और लास्ट मैंने लिया, तो इन दो नोट्स के बीच में जितने भी नोट्स आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, टोटल 6 आ रहे हैं ना इन दोनों के बीच में, तो इन सब की जो हम इंटरवल्स निकालेंगे, 7 इंटरवल्स निकलेंगे टोटल, तो इन सातों को अगर हम सम कर दें तो हमारे पास वही रेशियो आएगी, वही इंटरवल आएगा जो इन दोनों नोट्स के बीच का था. सो इंटरवल बिटवीन एनी टू नोट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटरवल बिटवीन द इंटरवीनिंग नोट. इंटरवीनिंग नोट्स मतलब इन बिटवीन दिस टू नोट्स. ठीक है. सम ऑफ द इंटरवल्स इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग देम. ठीक है. और ये इंटरवल्स हम दो नोट्स का ले रहे हैं, साथ वाले दो ले लिए हमने. ठीक है. तो उसके साथ वाला फिर लिया, फिर ऐसे उसके साथ वाला लिया, सबके साथ वाले को लेके हमने सम करना है सबका. ये सम जो है उसको हम इंटरवल्स का मल्टीप्लाई करके करते हैं. यहाँ पे सम ऑफ इंटरवल का मतलब उसको अलजेब्रिकली या अर्थमेटिकली यहाँ पे ऐड करना नहीं है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ और क्लियर हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इंटरवल बिटवीन नोट सी एंड एफ, यहाँ पे लिखा है 32/24. अब ये कैसे आया, अब देखो ये मैंने इस टेबल से इसकी वैल्यू ली है. सी है मेरे पास, ये सी है और ये एफ है, ये एफ है. ठीक है. तो सी की मैंने ले ली है 24 और एफ की है 32, मतलब 32/24 कितना हुआ, 4/3 होगा. ठीक है. तो ये किसके इक्वल आना चाहिए कि अगर मैं इन दोनों की लूँ 27/24 मल्टीप्लाई बाय, अगर मैं इस साथ वाला कौन सा है 30/27. ठीक है. फिर उसके साथ वाला कौन सा है 30 और 32, मतलब इन दोनों के बीच में जितने भी आ रहे हैं उन सबका इंटरवल ले लिया. ठीक है. 30/32/30. ओके. सो इसको आप सॉल्व करो. देखो 30 से 30 कैंसिल, 27 से 27 कैंसिल, और ये आपके पास वही आ रहा है 4/3. सो कहने का मतलब ये है कि जो आपने सारे इंटरवल्स का सम लेना है. यहाँ पे सम का मतलब है कि आपने इन सब इंटरवल्स को, ये इंटरवल है ना, ये इंटरवल्स का आपने सम करा है, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. और ये जो रेशियो आएगी वो सेम आएगी. ओके. दिस वेरीफाइज द अबव स्टेटमेंट. द सम ऑफ द इंटरवल्स between adjacent note of the major diatonic scale is an octave. एडजेसेंट स्केल का अगर हम सम देखते हैं तो हमारे पास ऑक्टेव आएगा, क्योंकि आप एग्जाम्पल के साथ भी देख सकते हो. जैसे मैं आपको बताती हूँ. अब यहाँ पे आप देखो इंटरवल बिटवीन एडजेसेंट नोट एंड इट्स नेम. यहाँ पे तो एडजेसेंट नोट के साथ इसका तो कोई है नहीं, तो यहाँ नहीं लिया. उसके साथ वाला अगर लेंगे तो 9/8, देन 10/9, 16/15. ठीक है. 9/8, 10/9, 9/8, 16/15. ये सारों का आपने रेशियो लिया. अगर ये सारी रेशियो एडजेसेंट टोन के एडजेसेंट नोट की इंटरवल लिखी हुई हैं, इन सबको एज इट इज़ आप मल्टीप्लाई करके अगर आप फाइंड करोगे तो ये रेशियो आपकी किसके इक्वल आएगी, 2 के इक्वल आएगी. ठीक है. जो आपकी ये रेशियो के इक्वल था, फर्स्ट एंड लास्ट के इक्वल था. ओके. सो आपके स्केल की टेबल में एडजेसेंट नोट के इंटरवल का अगर आप सम कर दोगे मेजर डायटोनिक स्केल में, सो इट इज अ ऑक्टेव. सम ऑफ द इंटरवल इज ऑब्टेन्ड एज दिस. ट्राई डूइंग दिस विद योर सेल्फ. ओके. ओके. नाउ ड्रॉबैक ऑफ अ डायटोनिक स्केल. ड्रॉबैक क्या है कि इन द स्केल द की नोट इज फिक्स्ड, राइट, एंड द सिंगर इज कंपेल्ड to play with the note C as the key note, and this requires a lot of practice and modulation of voice on the part of singer, right. इस केस में क्या है कि डायटोनिक स्केल में आपने जो की नोट है, द नोट विद द लोएस्ट फ्रिक्वेंसी, उसको आपने फिक्स कर दिया. जो नोट C है स्टार्टिंग वाला लोएस्ट नोट है. अब वो सिंगर को कंपेल है कि वो उससे नोट से ही उसको गाना पड़ेगा. ठीक है.
और उसको उसके लिए बहुत प्रैक्टिस और मॉड्यूलेशन अपनी वॉइस में भी करनी पड़ती है. सो दिस इज़ अ ड्रॉबैक ऑफ अ डायटोनिक स्केल. और अगर मैं एक और स्केल की बात करूँ विच टेम्पर्ड स्केल. टेम्पर्ड स्केल क्या है? दिस इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 5 मोर नोट्स टू द मेजर डायटोनिक स्केल. मेजर डायटोनिक स्केल में हमारे पास कितने नोट्स थे? टोटल 8 थे. 8 में 5 और नोट ऐड कर दिए और एक न्यू स्केल बना दिया 13 नोट्स का, जिसको बोलते हैं टेम्पर्ड स्केल. और ये प्रॉपर इंसर्ट किए गए थे प्रॉपर प्लेसेस पे ये नोट्स. और इक्वली टेम्पर्ड स्केल क्या है? इन दिस द इंटरवल बिटवीन अ नोट एंड इट्स ऑक्टेव इज डिवाइडेड इनटू 12 एग्जैक्टली इक्वल इंटरवल्स. राइट. इसमें क्या है कि 5 मोर नोट्स ऐड कर दिए, ठीक है, बट ज़रूरी नहीं था. यहाँ पे ये लिखा नहीं कि इक्वल इंटरवल्स में ऐड किए. यहाँ इक्वली टेम्पर्ड स्केल में क्या है कि 13 नोट्स तो हो गए टोटल, ठीक है, बट ये जो 12 इक्वल इंटरवल्स बनेंगे 13 नोट्स के 12 एग्जैक्टली इक्वल इंटरवल्स बनेंगे. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज इक्वली टेम्पर्ड स्केल. दस द इंटरवल बिटवीन एनी टू कंसेक्टिव नोट, कोई भी आप एक कंसेक्टिव नोट का इंटरवल इसमें देखोगे तो वो क्या होगा? 2 की पावर 1/12. और इसी तरीके से आप सब्सिक्वेंट सारे नोट्स आप निकाल सकते हो. जैसे कि 1 होगा फर्स्ट, उसके बाद होगा 2 की पावर 1/12, देन 2 की पावर 2/12, 2 की पावर 3/12, देन एज सो ऑन 2 की पावर 11/12 एंड 2. क्योंकि आपने इसको 12 एग्जैक्टली इक्वल इंटरवल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है. और ये है क्या आपका? है तो ये ऑक्टेव ही, मतलब कि इसकी जो रेशियो है फर्स्ट और लास्ट वो 2 आएगी, ठीक है. सो इसलिए आपने उसको 12 पार्ट में डिवाइड किया, तो आपकी एक कंसेक्टिव नोट की जो इंटरवल होगी वो 2 की पावर 1/12 बनेगी. ओके. अब ये जो टेम्पर्ड स्केल था इसका क्या फ़ायदा है कि दिस स्केल प्रोवाइड्स मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इन म्यूजिक एंड दस इट अकोमोडेट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगर्स एंड म्यूजिशियन. अब डायटोनिक स्केल के ड्रॉबैक को इसने ओवरकम कर दिया कि इस स्केल में मैक्सिमम मॉड्यूलेशन पॉसिबल है, और इसी वजह से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ सिंगर्स और म्यूजिशियंस हैं इस स्केल से की हेल्प से प्ले कर पाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स को और गा पाते हैं. वेयरएज डायटोनिक स्केल में ये हमारे पास ये ड्रॉबैक था कि जो की नोट था वो फिक्स था, ठीक है, और उसी के साथ उसको प्रैक्टिस करनी पड़ती थी और उसकी वजह से बहुत दिक्कत आती थी. So I hope it's clear. If you are facing any problem, you can put it in the comment box. That's all for today. Thank you and have a nice day.